21 of exercise 6.3. Find the equation of normal. We have to find out the equation of normal here to this curve and which is parallel to this line. Means normal of this curve is parallel to this line. And we know that if two lines are parallel then their slopes are equal. इसका मतलब क्या होगा, इस नॉर्मल का स्लोप और इस लाइन का स्लोप जो है वो इक्वल होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. वो पॉइंट हम फाइंड आउट कर लेंगे जो कि नॉर्मल और कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है. ठीक है, तो इसके लिए क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे और इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे. चलिए फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक द कर्व, गिवन कर्व. गिवन कर्व इज व्हाट, y is equal to x cube plus 2x plus 6. So on differentiating with respect to x, you will get dy upon dx is equal to 3x square plus 2. So slope of normal at any point xy will be what, minus 1 upon dy upon dx, that is minus 1 upon 3x square plus 2. And given line is x plus 14y plus 4 is equal to 0. If you will write it in the form y is equal to mx plus c, इस फॉर्म में अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा, 14y इन दोनों को ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस एक्स और माइनस 4 हो जाएगा. तो 14y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4, देन y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 14x और माइनस 4 अपॉन 14, that is 2/7. So with the help of this, the slope of this line is will be what, is equal to minus 1 upon 14. Okay, since this given line is parallel to normal, it is parallel to normal, so slope of normal is equal to slope of that line, and the slope of normal is what, minus 1 upon 3x square plus 2 is equal to minus 1 upon 14. ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 14. मीन्स 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12. 2 ट्रांसपोज हो जाएगा. दिस इम्प्लाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. Now when x is equal to 2, y is equal to, from the curve we will find out the y. It is 2 cube, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं. 2 cube is what, 8 and 2 2 जा 4 plus 6, that is 18. And when x is equal to minus 2, then y is equal to minus 2 cube is minus 8. 2 into minus 2 is minus 4 plus 6, that is minus 6. So the 2 points are the points of contact will be 2, 18 and minus 2, minus 6. So we get point of contacts and the slope. So with the help of this point and slope, we will find out the equation of normal using one point slope form. So first of all, we will take these points, the equation of normal.
taking point to 18 and slope minus 1 upon 14. So it is y minus 18 is equal to minus 1 upon 14 into x minus 2. मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14y minus 18 into 14, and this 18 into 14 will be 252 is equal to minus x and minus minus plus 2. So what we have, x को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो x plus 14y, 2 इधर आएगा तो minus 2 हो जाएगा तो minus 254 is equal to 0 will be the equation of one of the normal. Okay, now we'll take point, another point. That point is what? Minus 2 minus 6, and slope remains same, that is minus 1 upon 14. Then equation of normal will be y minus minus 6 is equal to minus 1 upon 14, x minus minus 2. So it is y plus 6 is equal to minus 1 upon 14 and x plus 2. 14 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14y and 14 6 84 minus x and minus 2. x को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो x plus 14y, 2 प्लस माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो इट इज 86 is equal to 0 will be the second equation of normal. These are the two equations of required normal. Exercise 6.2 question number 13. On which of the following intervals the function given by these is strictly decreasing? मीन्स हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से किस इंटरवल में जो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा. मीन्स इनमें से किस इंटरवल में dy बाई डी एक्स मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होगा. चलिए हम फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले डेरिवेटिव फंक्शन इज व्हाट आवर गिवन फंक्शन इज fx is equal to x raised to the power 100 plus sin x minus 1. We will find out the derivative. So f dash x is equal to 100 x raised to the power 99 plus cos x. अब हम चेक करते हैं कि किस इंटरवल में ये नेगेटिव है. देखिए फर्स्ट इंटरवल मीन्स x बिलोंग्स टू 0 to 1. अगर x बिलोंग्स टू 0 to 1 होगा तो ये 100 x raised to the power 99, 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखेंगे तो ये पॉजिटिव मिलेगा. और cos x भी क्या मिलेगा, 0 to 1 में पॉजिटिव ही मिलेगा. मीन्स ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है. अगर ये दोनों पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, 100x raised to the power 99 प्लस cos x ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा. इसका मतलब f dash x is equal to is greater than 0. मीन्स यहाँ f dash x greater than 0 मीन्स इस इंटरवल में तो ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग नहीं है. दूसरे इंटरवल की हम बात करते हैं. अगर x is belongs to this what pi by 2 to pi by 2 से pi के बीच में अगर x है तो आपका जो है 100x raised to the power 99 ये क्या होगा, दिस इज ग्रेटर देन 0. ये जो है 0 से हमेशा ग्रेटर होगा. और cos x ये लेस देन 0, सेकंड क्वाड्रेंट है. cos जो है लेस देन 0 होगा. अब देखो इस बीच में इसकी वैल्यू 100 मीन्स इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर ही होगी, 1 से ग्रेटर होगी. और cos की वैल्यू जो है लेस देन 0 है और लेस देन 0 कहां तक होगी, -1 तक होगी. इसका मतलब क्या है, इस इंटरवल में जो ये 100x to the power 99 इज ग्रेटर देन दिस. 100x to the power 99 जो है वो किससे ग्रेटर होगा, cos x से. अब cos x से ग्रेटर होगा ये, तो अगर ये नेगेटिव भी होगा तो ये पूरी टर्म को नेगेटिव नहीं कर पाएगा. मीन्स ये 100x to the power 99 प्लस cos x जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा. क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगी. इससे ज्यादा होगी तो क्या होगी, तो ये इससे ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा. लेकिन ये ज्यादा है इसका मतलब क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. और पॉजिटिव रहेगा इसका मतलब क्या है, f dash x is greater than 0. इस इंटरवल में बात करते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है. तो x belongs to 0 to pi by 2.
फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, cos x इज पॉजिटिव, और ये ऑब्वियसली x रेज टू द पावर 99 इंटू 100 इज ऑल्सो पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, 100 इंटू एक्स रेज टू द पावर 99 प्लस cos x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स f डैश x इज ग्रेटर देन 0, मीन्स सब जगह जो है f डैश x ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन यहाँ भी इस इंटरवल में भी ये जो है इस वाले इंटरवल में भी ये क्या है, इंक्रीजिंग है, यहाँ भी इंक्रीजिंग है, यहाँ भी इंक्रीजिंग है। इसका मतलब इन तीनों इंटरवल से किसी भी इंटरवल में जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द डीज। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी, नन ऑफ डीज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो